गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Our topic is to improve the science teaching. First of all, that हम लोग जो हैं नॉलेज एज में चल रहे हैं. We are running in the knowledge age and teaching is about us. That means we must understand the meaning of the teaching. Teaching is the process of sharing knowledge, information, experiences to explain how to do something. And the same is with the learning also. But learning is what? That it is the process of changing one's behavior by putting new knowledge into practice. So teaching is the teacher basically is the manager for managing the knowledge. Here teacher act as a manager whereas the student act as a working of means knowledge worker. तो स्टूडेंट को हम लोग नॉलेज वर्कर के रूप में देखते हैं और टीचर को क्या हो गया? टीचर इज़ द मैनेजर for managing the knowledge and teacher has the broad sense of work. यहाँ पर हमने बताया कि टीचर है मीडिया ऑफ नॉलेज, एडुकेटर, ऑथर, एडवाइज़र एंड मेनी मच अचीवमेंट, स्पोर्ट्समैन, स्पोक पर्सन, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस. सो टीचर हैज़ द वर्सेटाइल स्पेस और टीचिंग इज़ द वर्सेटाइल पार्ट. तो कहने का मतलब है कि हम एज ए टीचर वी हैव टू डू मैनी थिंग और टीचिंग करने के लिए हमें कई टूल्स अपने से भी तैयार करना पड़ता है. इसी तरह सेम वे लर्निंग इज़ अबाउट दैट ऑफ स्टूडेंट. लर्निंग इज़ अबाउट देम मीन्स लर्निंग इज़ फॉर द स्टूडेंट. And they learn that according to this particular graph that student have the again acceptance of many things, global knowledge, logic, numericals, here also physical activities, sensation or sensual creativity, ethic and spirit. Here it is the spiritual means the student, the learner have again the versatile space. So both have very beautiful coordination among them. अभी टीचर क्योंकि कोरोना काल दैट मीन्स पेंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, महामारी चल रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट और बच्चों के बीच में डायरेक्ट इमोशनल एक्टिविटी नहीं है. वी आर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन एक्टिविटीज़. तो ऐसे में ये भी हम जानते हैं कि ब्रेन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट हैज़ रेडियल कलेक्शन एंड रेडिएट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस फॉर ऑल डायरेक्शन एंड गोज टू द इंफिनिटी. सो ब्रेन, एवरीवन हैज़ द वेरी ब्यूटीफुल ब्रेन. But the need is what? To direct the direction which may go to the infinity, the direction which is provided by the teacher. During very common activity I am doing, just think. During the practical, during the activity, we collect something, we do some activity. एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम कुछ एक्टिविटी करते हैं. देन आफ्टर वी ऑब्जर्व, कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन एंड देन रिजल्ट एंड इन्फ्रेंस और कंक्लूजन एट लास्ट. दिस इज द वे वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. जस्ट थिंक दैट आई एम ए बॉय, आई एम ए बेबी एंड आई गॉट वन पेपर. And one paper, just take, I am taking the paper here, this is the paper suppose, and as a baby what I will do? I start first of all making cramping of this and after that I just see that and tear it.
Then after again I will do something like that as a baby, and what we observe, and not tasty. And then after again I will do this thing, and after that leave it. If one baby is doing, but if the observer are here along with the baby, if the observer only see the activity and have no action about this, what we observe, that the baby just leave the paper and go for the another activity. But if the observer will say, hey, what are you doing? It is the wrong way. You are wasting the paper. It is the stupid work. So on that case, baby will not gain proper activity. And he has a tendency to do again to know about all this. And during these activities, baby act as a scientist. He observe what actually is the social economical value now it has. He see the rigidity by this cramping this one. During the tearing, it says observe the tensile strength, striking or just keeping the sound where it is the musical sound or just rubbish sound, or that take the chewing part, means what he is doing, that is chemically it is testing, chemically he is testing, which is going on very big laboratory. So overall, if you observe the activities of the baby, you will find that he act as a Newtonian, he act as a Einstein, he act as a scientist. But if we stop these activities, on that case, he will not act as a scientist. He will not give any response. So every children has the ability, every children act as a scientist. Teachers should also behave as a scientist. And during this, the involvement of the person is important. Involvement of the learner is important. And that learning process, we need many things. What something that I told, in the part of the teacher, means that teaching is about them or about the teacher, that what are the points to be during the learning, that is the mind mapping, or one activities here, number of activities I draw here. These are the group quiz, paper reading, project work, investigative report, exhibition, PowerPoint presentation, and e-certificate provided by the principal, making video and PDF, presentation of the quiz, online science workshop, and model classes. Now one by one I am telling you regarding this, that mind mapping. And before going to the mind mapping, I must write some points, something that you can understand. One is, you tell me and I forgot. First point, you telling me. You tell me and I forget. Second point, just see, you teach me, and I remember, And third point is what? You involve me, and I learned. The third point is the important during the teaching and learning. That involvement of the student, involvement of the person who learn is important.
how we involve them. So for that, mind making, that is one part, and it will increase at last the ability to understand. These are the mind mapping. Just I am doing one mind mapping regarding the topic, and that mind mapping needs some steps. The topic which have to be taught, that should be at the center, and after that we make a flow chart. Part by part we will write what step should be taken, or you may use as a hierarchy of the topic, or we may use as at the center is the topic, then after the branch will come out, and the branch related with the another topic related to that of the center topic. That is called mind mapping. One example I am doing, and that suppose I am teaching the charge. सबसे पहले हम चार्ज को सेंटर में रखेंगे और सभी बच्चे को बताएंगे कि ये चार्ज को और कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे पहला पार्ट हमने कहा कि चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अब इसका आगे फर्दर ब्रांच बना दिए। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? दैट Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE इन मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज, बेसिक चार्ज। देन आफ्टर वी गो टू द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और यहां भी बात कर रहे हैं एडिटिविटी का पर्पस क्या है? इट विल इंडिकेट द पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द बॉडी, वेदर द बॉडी इज पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ बॉडी का पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको एडिटिविटी से हम लोग जानते हैं, समझ पाते हैं। फिर आ गया इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अब इसका एक पार्ट और बना दिए। देखिए हम सभी में एरो पार्ट ब्रांच और बढ़ा रहे हैं। सेंटर में चार्ज है, और इनवेरिएंस का मतलब हो गया नो इफेक्ट विद द स्पीड, नो इफेक्ट विथ स्पीड। फिर आगे यहाँ पे आगे अगर देख रहे हैं तो आगे एक पार्ट और बात करते हैं कंजर्वेशन of charge. That means conservation, net value of the charge is constant. Net value is constant. तो यहां भी एक ब्रांच और बना, ये ब्रांच दिखा रहे हैं। फिर आ गए यहां पर नेचर विद द अदर चार्जेस, नेचर विथ अदर चार्जेस। अब इसका भी एक ब्रांच और कर दिए, तो इस नेचर में क्या मिलेगा हमको? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और देख रहे हैं तो एक और ब्रांच आप यहां तैयार कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एक ब्रांच और आ गया, दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। देखो अब ये माइंड मैपिंग हमने किया। इस तरह का हर पर्सन का माइंड मैपिंग अलग अलग हो सकता है। चार्ज एट द सेंटर, और क्वांटाइजेशन हुआ, एडिटिविटी हुआ, क्वांटाइजेशन में फर्दर क्या हुआ। अब इसको अगर हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं और फ्लो चार्ट के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे चार्ज आपने लिया, चार्ज के आगे चले गए, जो आपने लिखा पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें आपने देखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE।
फिर दूसरा बात आ गई यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और ये क्या बता रहा है, तो अभी आपने लिखा दैट द नेचर ऑफ द बॉडी मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव बॉडी। एडिटिविटी से हम समझते हैं। तीसरा बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ये भी कैसा हो गया, नो इफेक्ट विथ स्पीड, नो इफेक्ट विथ स्पीड। और फिर एक पॉइंट और आ गया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या बताए, नेट वैल्यू इज कांस्टेंट, नेट वैल्यू इज कांस्टेंट। फिर आगे देख रहे हैं तो क्या आपको मिल रहा है, नेचर विथ अदर चार्जेज, नेचर विथ अदर चार्जेज। तो अदर चार्जेस के साथ नेचर कैसा हो सकता है, तो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और अगर हम लास्ट देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या देखा, तो यहां पर वनली मैग्नीट्यूड। और भी तरह से हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए चार्ज, तीसरा तरीका बता रहे हैं, ये आपका दूसरे तरीका हुआ। पहला तरीका आप ऐसे देख सकते हैं, दूसरा ऐसे देख सकते, तीसरा आप ऐसे कर सकते हैं। चार्ज को आपने रखा और इस चार्ज से फिर आगे डिवाइड कर दिए, यहाँ पर लिख दिए क्वांटाइजेशन। दूसरा हो गया एडिटिविटी, तीसरा हो गया इनवेरिएंस, चौथा हो गया, चौथा पार्ट में ले लिया कंजर्वेशन, फिफ्थ हो गया दैट यू हैव टेकन नेचर विथ अदर चार्ज, नेचर विथ अदर चार्ज। और फोर्थ पार्ट आपने ले लिया दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर अब सभी का फिर फर्दर आपने एक मैप कर दिया। यहाँ पर हो गया Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एडिटिविटी हो गया, दैट मीन्स आइदर द बॉडी इज पॉजिटिव और निगेटिव। इनवेरिएंस नो इफेक्ट, इनवेरिएंस में क्या हो गया, नो इफेक्ट ऑफ स्पीड। कंजर्वेशन में क्या देख रहे हैं, तो कंजर्वेशन क्या हुआ, नेट वैल्यू इज कांस्टेंट, नेट वैल्यू इज कांस्टेंट। तीसरा हो गया नेचर विद द अदर चार्जेज, नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर माने मैग्नीट्यूड। इसका मतलब एक ही चीज को हम तीन तरह से एक माइंड मैपिंग किए, और ऐसा नहीं है, हर पर्सन अपने अपने तरीका से माइंड मैपिंग करता है। और पर्पस क्या है, टू गिव द इंटेंशन, टू गिव द पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ द ऑन द पॉइंट, कि उसका इम्पोर्टेंस कितना है, पॉइंट्स को कैसे हम बढ़ाएंगे और आसान बनाएंगे बच्चों को समझने के लिए। तो पहले तो आप इस तरह करके माइंड मैपिंग करके बच्चे को समझा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि
जब हम माइंड मैपिंग समझ रहे हैं, माइंड मैपिंग करने से अगर आप इस तरह माइंड मैपिंग करते हैं और बच्चों से भी कराते हैं तो एक समय आएगा कि बच्चा खुद से भी किसी लेक्चर को अपने हिसाब से पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकता है और साथ में जो लिखने के बाद जब कभी भी उसको देखेगा उसको सारी बात समझ में आ जाएगी और हर एक पॉइंट को वो डील भी कर सकेगा। इसलिए एक प्रोसेस आपको ये भी अपनाना चाहिए माइंड मैपिंग, और बच्चों को कंपेल करना चाहिए कि आप अपने से भी एक माइंड मैपिंग करो। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो उसका एक माइंड मैपिंग कर लीजिए। इसी तरह एक्टिविटीज़ अलग अलग आ गया, जैसे हमने कहा ग्रुप क्विज़ हो गया, तो ऑनलाइन हम क्लास ले रहे हैं। इसी क्लास में हम 2 पार्ट में रोल नंबर को डिवाइड कर दें और उसके बाद एक दोनों में से कह दें पहले से ही कि आप 20 क्वेश्चन तैयार कीजिए, दूसरे को भी बोल दें कि आप भी 20 क्वेश्चन तैयार कीजिए और डेट दे दें कि फलाने डेट पे एक बार एक ग्रुप ए से दूसरे बार ग्रुप बी से क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से पूछेगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं उसको पॉइंट दूंगा। तो इस तरह करके आप ग्रुप क्विज भी करा सकते हैं ऑनलाइन विधि के द्वारा, एंड ये करना चाहिए। दूसरी बात पेपर रीडिंग, जैसे अभी बहुत सारा एक्टिविटीज़, बहुत सारी बातें हैं जो कॉमन करेंट में है। पेपर रीडिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट का टाइम दे, हर बच्चे को आप दे दीजिए कि 2 मिनट का पेपर रीडिंग आप तैयार करो और यू गिव द टॉपिक ऑल्सो फॉर दैट पेपर रीडिंग। जैसे अभी करंट में चल रहा है कोरोना एज ए पेंडेमिक, उस पे भी आप बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वैक्सीनेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ द वैक्सीनेशन, वो भी आप एक टॉपिक दे सकते हैं। इस तरह कई बात हम लोग कर सकते हैं जो पेपर रीडिंग में आएगा, और छोटा छोटा पार्ट मीन्स ओनली फॉर द 2 मिनट्स। और यू कैन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द 40 मिनट ऑफ द टाइम ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर। 2 मिनट का टाइम देंगे, 2 मिनट में वो कुछ पॉइंट्स देगा और उसी पॉइंट्स को वो डील करेगा, ठीक है। तो एक तरह से पेपर रीडिंग और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। उसी तरह प्रोजेक्ट वर्क आप दे दिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क ऐसे है जो घर में करना है इस पेंडेमिक के समय। मान लीजिए आप कह रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क में भी हम बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोजेक्ट वर्क देना चाहते हैं इसमें भी, तो कई तरह का है। कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ LED इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर आप ऐसा भी दे सकते हैं बच्चों को कि तुम घर में कपड़ा है, कई तरह का अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लॉथ्स होगा, कोई रेयॉन होगा, कोई नायलॉन होगा, कोई पॉलिस्टर होगा, कोई एक्रेलाइट होगा, कॉटन होगा, एक्रिलिक होगा, कोई सिल्क होगा। इस तरह कहने का मतलब है कि इन सभी का कलेक्शन करना और उसको एक जगह उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बिहेवियर को लिखना, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं जो बच्चा खुद से इन्वॉल्व करेगा और वो कपड़ा पहचानने जान पाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं पहचान पाते हैं कि कपड़ा कौन सा दे रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके आप वर्कआउट दे सकते हैं बच्चों को, दैट इज़ द प्रोजेक्ट वर्क। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कई तरह का एक्टिविटीज़ है। जैसे कहने का मतलब है कि आप सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए दीजिए, जो आप कोई भी बच्चा कर सकता है सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर क्या है, सो द रैपनिंग ऑफ स्लाइस और चॉप्ड प्रोडक्ट, तो सो द रैपनिंग ऑफ स्लाइस्ड काटा हुआ फ्रूट्स है या वेजिटेबल है, उसको हम कैसे रख सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं, उसका भी कई विधि आप बता दीजिए पहले से। जैसे नींबू पानी में रखेंगे तो नहीं ख़राब होगा, 24 आवर्स तक नहीं ख़राब होगा। हनी वाटर में रखेंगे, हनी माने मध के साथ मिलाकर मध के पानी में रखेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। और वो बच्चा परफॉर्म करेगा, वो देखेगा टाइम पीरियड कितना है लग रहा है, और इस तरह करके वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार कर सकता है। हर एक अलग अलग वेजिटेबल, अलग अलग फ्रूट्स को लेकर के कि इसको इतना देर बाद सड़ेगा, ये इतना देर बाद डैमेज होगा, ये इतना देर बाद रैपिंग होगा, मीन्स डैमेज होगा, रैपनिंग ऑफ दिस। और फिर और भी आप दे सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जैसे मेकिंग द बैटरी आउट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
कई बार तो आप YouTube में भी देख सकते हैं, कई बार आप ऐसे भी देख करके घर के एक्टिविटीज़ को, घर के मटेरियल को यूज़ करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। ठीक है, तो यू इन्वॉल्व द स्टूडेंट। फिर अदर एक्टिविटी जो है एग्जीबिशन, शॉर्ट मॉडल। तो एग्जीबिशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जीबिशन के मतलब ये भी शॉर्ट मॉडल हमने लिख दिया है, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आप दे रहे हैं। जैसे सर्किट डायग्राम बनाने के लिए दे रहे हैं, कोई भी सर्किट डायग्राम आप बनाने के लिए दे रहे हैं एग्जीबिशन के एक पार्ट में, या फिर एक सिंपल सर्किट हो गया, सोलर एनर्जी बेस्ड मॉडल हो गया, फिर प्लांटेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो गया। तो बच्चा इस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क, कुछ ना कुछ मॉडल तैयार कर सकता है। मॉडल को अब आप इसको बोलिए कि मॉडल आप बने, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव मॉडल हो, वो एक मॉडल के रूप में भी हो, ठीक है, वर्किंग हो, ऐसा नहीं। तो ये कर सकते हैं। और इसको लेकर के कई ऐसे संस्थाएं हैं जो चल रही है। जैसे आपको पहले तो बता दें, इंस्पायर अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। इंस्पायर अवार्ड के बारे में क्या है, तो एम टू मोटिवेट द स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स और एंड स्टडिंग इन द क्लास 6 to 10। जो बच्चे 6 से 10 तक में पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और नहीं, इतने ही नहीं, इंस्पायर अवार्ड में तो 10,000 रुपीज़ का जो 10,000 बच्चे का सिलेक्शन होता है, उस 10,000 बच्चों में को हर को 10,000 रुपया डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और सेलेक्टेड बच्चों का, जो 10,000 बच्चे को सेलेक्ट किया गया, उनके पास डायरेक्ट 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में पेमेंट होता है। और उसके बाद उन 10,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे को फिर सेलेक्ट किया जाता है और आउट ऑफ 1,000 60 ऐसे स्टूडेंट जो बच्चे हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, उन सभी को नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है, नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और उनके वर्क को फ्यूचर डायरेक्शन मिलता है। फ्यूचर डायरेक्शन माने उस पर भी वर्क आगे प्रोसीड किया जाता है। तो ये इंस्पायर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। उसके बाद एक है जो दूसरा आपके पास है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में यहाँ पर भी आपका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। नेशनल साइंस कांग्रेस में जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ए प्रोग्राम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी पार्ट है। ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है। द चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस at the district and state level is flagship program of National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, Government of India. It is a platform for the children to carry out the small research activities at micro level. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लो कॉस्ट पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। लो कॉस्ट कहने का मतलब है यू जस्ट ऑब्जर्व एंड कीप द डाटाज, कलेक्ट द डाटाज एंड आफ्टर दैट कलेक्शन यू जस्ट प्रोसीड। मतलब आपका डाटा कलेक्शन पे ज़्यादा वर्क होता है। और लो कॉस्ट कहने का मतलब है कि इसमें आपको ज़्यादा वर्कआउट में ज़्यादा बड़ा मॉडल या कुछ इस तरह का बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से ये भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के तरह पार्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट वुड्स लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, तो हर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा या हीट कैपेसिटी कितना है, उसका 5 गो लकड़ी अलग अलग तरह का लिए और सबको हमने ऑब्जर्व किया, उसका एक डाटा बनाएं। यहाँ कोई भी कॉस्ट के बारे में बात नहीं है, पेपर से नोट करके उसके बारे में डिटेल बताना और तब जा कर के कंक्लूज़न में आना कि हर एक मटेरियल का अलग, हर एक लकड़ी का अलग अलग हीट कैपेसिटी है। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराता है वो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जो एवरी ईयर, लास्ट ईयर 28th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एग्जीबिशन हुआ था 3 to 7 of January।
इस साल भी इसका प्रोसीड्यूर स्टार्ट होगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सितंबर और अक्टूबर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग दूसरे एग्जीबिशन पार्ट पे देखें जो कि आपका क्या है, साइंस कांग्रेस का देखे थे। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक जगह हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक एग्जीबिशन को कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। और इस तरह करके हम लोग CBSE के द्वारा भी हमारा एक्टिविटी होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिसोर्स डिपार्टमेंट, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये CBSE भी साइंस एग्जीबिशन को कंडक्ट करती है। और हमारे विद्या विकास समिति में तो एवरी ईयर इट इज़ गोइंग ऑन। ड्यू टू दिस पेंडेमिक लास्ट ईयर इसको कंडक्ट नहीं कराया गया, लेकिन अगर हम चाहें, हम टीचर चाहें तो छोटा छोटा मॉडल और छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑल्सो वी इन्वॉल्व द स्टूडेंट टू लर्न। अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि यू इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, मतलब आप जब तक उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो लर्निंग नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं और उसमें कमांड ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इन्वॉल्व करना होगा। दैट मीन्स वी मेक द फोकस ऑन द स्टूडेंट एक्टिविटीज़, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर वर्कआउट। ठीक है, तो इस तरह करके आप एग्जीबिशन के बारे में देखें। फिर आप छोटा छोटा पावर पॉइंट कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि 5 स्लाइड ही बनाइए और उसमें पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कीजिए। कई ऐसा एक्टिविटीज़ है पावर पॉइंट के लिए जो हम आपसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं पावर पॉइंट के लिए। मान लीजिए आपको पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड करना है, तो पावर पॉइंट माने कंप्यूटर पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 स्लाइड का ही बना करके उसको आप पावर पॉइंट को मिनिमम 5 to 10 स्लाइड्स भी बना सकते हैं और उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई तरह का एक्टिविटीज है, जैसे मेकिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग, इसका भी आप बना सकते हैं पावर पॉइंट। फिर कई ऐसे भी कर सकते हैं, राइट द 20 रिएक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, 20 रिएक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उस पर भी बात कर सकते हैं। 20 रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस पर भी बात कर सकते हैं। और मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द पावर मेक विच एक्सप्लेन्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, पावर वोल्टेज रेटिंग, नेट पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, नेट पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। और इस तरह करके आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह एक्टिविटीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। ग्रुप हमने बताया आपको, क्विज कैसे कराएंगे, पेपर रीडिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर सकते हैं, एग्जीबिशन करा सकते हैं पावर पॉइंट का। एट लास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को चाहिए, एवरी इंस्टीट्यूट दैट मस्ट प्रोवाइड द ई-सर्टिफिकेट फॉर दिस एक्टिविटीज़। और ये तभी संभव है जब उसमें सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर भी इन्वॉल्व हो करके बताए कि नहीं, इन बच्चों को ई-सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सकता है और ई-सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से बच्चे अपने और मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह एक्टिविटीज़ हुआ। कुछ एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ भी लिखा है, मेकिंग वीडियोज़ एंड PDF। देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो और PDF नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप आराम से बना सकते हैं, मोबाइल में भी आप बना सकते हैं वीडियो को, और PDF भी आप दे सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है आपसे नेट से नहीं मीट कर पा रहे हैं। मेरे ही क्लास में ऐसे हैं जिनके भाई बहन अलग अलग स्कूल में भी है और अपने स्कूल में भी है, लेकिन उसी टाइम पे उसका क्लासेस भी चल रहा है, एक मोबाइल घर में है। ऑन दैट केस दिस वीडियो मेकिंग प्रोवाइड्स वेरी मच लर्निंग टू दैट स्टूडेंट। जो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन में, वो इस वीडियो को देखता है और हमको बताता है कि सर हमने आपका वीडियो देखा है और उसी के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टेलीफोनिक बाद में। ठीक है, तो वीडियो बनाना चाहिए हर एक टीचर को। और इतना ही नहीं, बच्चों को भी कहना चाहिए कि आप भी एक छोटा क्लिप वीडियो बनाइए किसी ना किसी टॉपिक का और उसको सेंड कीजिए, ताकि उसमें भी एक क्रेज़ पढ़ने और वीडियो में करेक्शन बनाने में, तो उसको करेक्शन भी ध्यान में रखना है, तो इस तरह वो भी तैयार करेगा।
पीडीएफ हमेशा प्रोवाइड कीजिए, जैसे भी हो पीडीएफ भेजिए, क्योंकि पीडीएफ भेजिएगा तो बच्चा जो कुछ भी ऑनलाइन में छूट जा रहा है, क्योंकि वो आपके कंसर्न में नहीं, आपके पास दौड़ के नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका लिखा हुआ पीडीएफ जाएगा, वो किताब को कभी पलट के नहीं देखेगा, लेकिन आपका लिखा हुआ पीडीएफ अगर देखेगा तो वो उसको पढ़ेगा, उसको नोट करेगा, क्योंकि सर ने दिया है, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ गई। हर एक टीचर को इन्वॉल्व होना चाहिए इस वर्क में और बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर टीचर प्रिपेयर करे ऐसा हम बात नहीं कर रहे हैं। यू गिव द वर्क आउट टू द स्टूडेंट कि आप इस टॉपिक का 20 क्वेश्चन बनाइए और बना करके आप लोग मेरे पास भेजिए, या मैं किसी एक से पूछूंगा कि आपने जो 20 क्वेश्चन बनाया वो क्या है। तो इस तरह रेंडमली आप देखेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सभी बच्चे का हो जाएगा और उस टॉपिक को वो पढ़ेगा, क्योंकि उसको 20 क्वेश्चन निकालना है। इस तरह करके आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक ही छोटा सा टॉपिक दे दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने रिफ्लेक्शन में दिया है और रिफ्लेक्शन में कोई पार्ट आपको दे दिए कि प्रिज्म को लेकर के आप बताइए क्या क्या चीज़ रिफ्लेक्शन में होगा, प्रिज्म में क्या क्या बात आप नोटिस करते हैं। 20 क्वेश्चन बनाइए कि 7 कलर्स कैसे बनेगा, उसको कंबाइंड करेंगे तो सिंगल कैसे हो जाएगा, कौन सा लेंस आप, कौन सा प्रिज्म आप कंसीडर कर रहे हैं, इमर्जेंट क्या है, इंसिडेंट क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, वो सब बात आपको बताना है। तो इस तरह करके वो उसको पढ़ करके 20 क्वेश्चन उसमें से निकालेगा। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट बाय द टीचर। मैं कह रहा हूँ इसमें इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट को, तो ये इन्वॉल्व हो गया स्टूडेंट भी। और ऑनलाइन साइंस वर्कशॉप ये टीचर के लिए मस्ट है, ये होते रहना चाहिए। मैं विभाग प्रमुख से और अथॉरिटी से हमेशा कहूँगा कि आप ऑनलाइन साइंस वर्कशॉप कराइए, और इसमें कई बात रखना पड़ता है, टॉपिक का डिस्कशन करना पड़ता है। ऑनलाइन में आप हो सकता है कि आप साइंस ग्रुप के टीचर हैं तो साइंस वाले को एक बार डेट दे दीजिए, अदर सब्जेक्ट वाले को अदर डेट दे दीजिए, ऐसे करके एक ग्रुपिंग वर्क भी, वर्कशॉप भी चालू होना चाहिए, करना चाहिए। इसके साथ ही आ गया मॉडल क्लासेस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सेलेक्ट करके, चाहे वो किसी लेवल का हो, संकुल हो या विभाग स्तर हो या प्रांतीय स्तर हो, हर एक जगह कुछ विशेष टीचर का कोई क्लासेस को एज ए मॉडल क्लास उसको प्रेजेंटेशन में दिखाना और हमेशा उससे मोटिवेट करना अदर टीचर को कि आप भी इस तरह कर सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं लगता है। सो ओवरऑल हमने सारी बात आपसे किया कि कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, खुद भी इन्वॉल्व होंगे, और तभी इतना सारा कुछ करने पर निश्चित तौर पे ये जो हमने हेडिंग दिया है, इम्प्रूवमेंट इन द साइंस टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दैट विल बी परफॉर्म्ड। एट लास्ट मैं एक बात जरूर कहूँगा एट लास्ट में कि दैट वो एट लास्ट एन एग्जीबिशन दैट, या कह सकते हैं एग्जीबिशन, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं। दैट एट लास्ट इज़ द एजुकेशन दैट डज नॉट कल्टिवेट द विल इज़ वन एजुकेशन दैट डिप्राइव द माइंड। So for that, thank you to observing